everyone. Today we'll be continuing about or we'll be starting up with the another topic into the series of your income tax, which is your income under the head house property. We have talked a lot about the salaries. We'll be talking now about the second pillar of your income tax, that is your income under the head house property. So, as we know, we have 5 heads of your income tax, that is your salaries, house property, profits and gains of business and profession, capital gains and other sources. So, every head of your income holds great prominence. So, when talking about this house property, that means whatever the income that you are deriving from a property which you have given on rent. So, that income, how to compute the taxes onto such income, how to compute the income under such heads. So, today we'll be talking about the same. We'll be talking about your this head house property. So, the charging section, we call a charging section for the same, that is what all conditions that are to be kept into mind, or what is the basis of charge when we are talking about your income under the head house property. So, जब हम basis of charge की बात करते हैं, सबसे important point आता है that the property that we are talking about, it should consist of any building or land appurtenant thereto. यहाँ पर बिल्डिंग का मतलब या लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी टैक्सेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, इट शुड कंसिस्ट ऑफ योर एनी बिल्डिंग. दैट मीन्स वो बिल्डिंग आपका कोई म्यूजिक हॉल भी हो सकती है, राइट, वो बिल्डिंग कोई कंसर्ट भी हो सकता है, कंसर्ट हॉल्स होते हैं जो हमारे, लेक्चर हॉल्स भी हो सकते हैं, डांस हॉल्स भी हो सकती हैं, ऑडिटोरियम्स भी हो सकते हैं, right. So building doesn't mean कि आपका एक simple structure, it could be your halls, multiple halls, sort of your, you could say your music hall, sort of your lecture hall, so that is also forming a part of your building. Similarly, land appurtenant thereto मतलब कि आपके बिल्डिंग और उससे जुड़ा हुआ एरिया, यानी कि कनेक्टिंग एरिया, दैट कुड बी योर कोर्ट यार्ड्स हो गए, आपके बैक यार्ड्स हो गए, किसी भी टाइप की आपकी बालकनीज, राइट. सो दैट विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ व्हाट, that will be forming a part, that is a land which is connecting to your main building. So that is the first point that we have to keep into mind कि जब हम basis of charge की बात करते हैं तो जो property की बात कर रहे हैं वो property किसी भी building structure हो सकता है, कोई भी आपका courtyard हो सकता है, कोई भी music hall हो सकता है, right. Another second point in that is forms a part of your basis of charge is your that the assessee, he should be the owner of the property. Now, when we are talking about the owner of the property का मतलब होता है both legal and the deemed owner. Legal owner means जब उसके पास proper, the registry is onto his name, so he is a legal owner. But deemed owner कब माना जाता है? Deemed का मतलब होता है assume किया गया. जैसे हम डीम्ड असेसी की बात करते हैं कि सर्टेन केसेस में जो है असेसी, उनको हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट दिस पर्सन इज इन डीम्ड असेसी. सिमिलरली जब हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सर्टेन केसेस हैं जहां पर हम ऑनर को जो है डीम्ड ऑनर मानते हैं, वो हम आगे फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे कि डीम्ड ऑनर्स क्यों कौन से होते हैं. तो जब हम बात करें असेसी की ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तो ऑनर का कॉनोटेशन का मतलब है बोथ द लीगल एंड योर डीम्ड ऑनर. For the third point हम कहते हैं that the property, it should not be used by the owner for carrying out any business or profession. इसका मतलब ये हुआ कि जो असेसी है वो प्रॉपर्टी को जो है किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहा हो, बिकॉज इफ ही इज यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन, then your income would be taxable under the head your PGBP या फिर other sources में taxable होगा. तब तो वो हाउस प्रॉपर्टी में taxable होगा ही नहीं. Only if the property, जैसे हमने कहा, it should be owned by the assessee, चाहे वो deemed owner हो या legal owner हो, बट उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो प्रॉपर्टी जो है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी यूज फॉर योर एनी बिजनेस और योर कुछ प्रोफेशन, क्योंकि जैसे ही हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करेंगे वो सिमिलरली जो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी वो अंडर दी हेड पीजीबीपी आपका या फिर आपकी अंडर दी हेड योर अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, राइट. नाउ अगेन अगर सपोज करो आपका कोई वैकेंट प्लॉट है, राइट,
यू आर हैविंग एनी वैकेंट प्लॉट और उस वैकेंट प्लॉट से आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, सो वो रेंटल इनकम जो है आपकी वो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं यहाँ इस हेड में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा. हम अदर सोर्सेज में उसकी टैक्सेबिलिटी को चेक करेंगे, चार्जेबिलिटी की बात करेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर हाउस प्रॉपर्टी, सो एनी रेंटल इनकम दैट यू डिराइव फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्सेस, राइट. अगेन an important point is कि जब हम बात करते हैं सबलेटिंग की, सबलेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को फर्दर रेंट पर दिया और बी ने फर्दर जो है सी को उसको सबलेट कर दिया. सो यहाँ पर जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम फ्रॉम सबलेटिंग होगी, यानी कि जो बी ने सी को आगे फर्दर सबलेट करा, वो सेगमेंट जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगा, राइट. आपका हाउस प्रॉपर्टी में हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं दैट कि हाउस प्रॉपर्टी इट कुड बी लेट आउट बाय द एसएससी फॉर योर एनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बट वो एसएससी खुद उसको बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करे. अगर वो उसको खुद बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं एसएससी, देन तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और योर अदर सोर्सेज. सिमिलरली हमने बात करी कि अगर सबलेटिंग का पॉइंट आएगा तो वो अगेन आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा. One important point when we are talking about assessee, assessee का मतलब यहाँ क्या हुआ? Assessee means any person जिसकी इनकम को हम जो है असेस कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं. सो जो हमने इनिशियल सेगमेंट्स में बात करी थी दैट assessee means your any person here means that person defined under your Income Tax Act 1961. It could be your individual, it could be your anyhow a Hindu undivided family, any cooperative society, or let's say any company or a firm. Right. So, this is what when we are talking about your house property, always keep into mind that if the assessee is indulged into any business or if he is indulged into any profession, then his income is not taxable under the head your house property. Then we will be talking about your PGBP or other sources. Further on, right now I have mentioned about the deemed honor. So, deemed honor, as I mentioned, that means we are assuming the honor to be the the assessee as a your deemed honor, जहाँ assessee otherwise आपका जो है honor नहीं है, but हम उसे मानकर चल रहे हैं, assume कर रहे हैं. So that section 27 जो है वो 5 cases ऐसे हमें बताता है कि किन cases में जो है हम assessee को as assumed assessee या assumed honor जो है वो consider करेंगे. फर्स्ट केस हम लेते हैं when there is any property and वो property assessee ने क्या करा, अपने spouse या किसी माइनर चाइल्ड को अपना जो है ट्रांसफर करते हैं विदाउट देयर बीइंग एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न, राइट. सो उस केस में हम ये बात करते हैं वो तो एसएससी की ही प्रॉपर्टी हुई, बट इन केस वो प्रॉपर्टी जो है एक सेपरेटेड वाइफ को या मैरिड डॉटर को आगे फर्दर ऑन ट्रांसफर करते हैं, देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल. मतलब क्या हुआ, सपोज करो ए इज अ एसएससी, राइट, ही ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिसेस ए, राइट. सो इन दिस केस हम कहेंगे कि उस केस में जो मिस्टर ए हैं द हस्बैंड, राइट, ही इज द डीम्ड ऑनर ओनली बिकॉज उन्होंने जो वाइफ को प्रॉपर्टी करी. अगेन हमारे यहाँ पर क्लबिंग के रूल्स आ जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो चाहे उसने अपनी वाइफ को स्पाउस को जो है ट्रांसफर कराए प्रॉपर्टी, उस केस में भी मिस्टर ए को ही ऑनर माना जाएगा. सिमिलरली वो अपने किसी माइनर चाइल्ड को who is less than 18 years of age, right, चाहे he is a son or she is a daughter, right. So in both scenarios it will be considered कि जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, he is the only honor for the same, the deemed honor for the same. But अगर हम ये बात करते हैं that Mr. A and Mrs. A have separated and then Mr. A has transferred any property in the name of Mrs. A, उस केस में Mrs. A will be considered as the owner of the property. Similarly, Mr. A is having a married daughter and that property is transferred to the daughter when she is married, then in that case the owner in such scenarios would be considered as that daughter of Mr. A, that married daughter. So उस केस में हम जो है यहाँ बात करते हैं फर्स्ट डीम्ड ऑनर की, कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है स्पाउस को दे रहे हैं माइनर चाइल्ड को तो ठीक है, मिस्टर ए वुड बी द assessee, the deemed honor, right. But if it is given to a separated wife or if it is given to the married daughter, in that case they will be considered as the owner of the property.
Similarly, there is a second case onto the same, that is the holder of an impartiable estate. Impartiable यानी कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, राइट, हम टेम्पल को डिवाइड नहीं कर सकते, या ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है where the father holds the let's say property, or in let's say is having some rights over a temple, or let's say rights over agricultural land. So in certain scenarios, by virtue of your traditions, it comes to the eldest child. तो वहां पर जो है बाकी दो बच्चे, सपोज करो एक असेसी है, he is having let's say 3 kids, right, or 3 children. So उस केस में by virtue of the tradition it goes to the first child, the eldest one, but the rule says कि जो बाकी के 2 children है, they will also be considered as the, you could say, the assessee or the owner for the same. That means they will be considered as the deemed owner of the property, because here the property is an impartiable estate and by virtue of a tradition it goes to the eldest child, right, because he is the trustee of that property. But इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 children हैं उनको हम honor नहीं consider करेंगे. From the taxability point of view, they both of them, the remaining 2 children would also be considered as the deemed honor. Then we are talking about if there is a property which is transferred by any your cooperative housing society, जैसे आपकी formed up होती है. अब that group of cooperative housing society, they did what is, they have transferred the property into the name of their members, right. So जितने भी members होंगे उस cooperative housing society के, उन सबको as per your this section 27, they will be considered as your deemed owner of the property. So whenever we are talking about all these cooperative housing societies, we will be considering all these members as your deemed owner for the same. Similarly, अगर आपका fourth case इस पे है, if let's say कि property is acquired under that your power of attorney, you must have heard about this terminology, power of attorney. अब पावर ऑफ अटॉर्नी हम कहते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई करती है कुछ रूल्स एज गिवन अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ योर प्रॉपर्टी एक्ट, देन हम उसे कहेंगे इन दैट केस योर डीम्ड ऑनर, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑनर है या रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है, बट वो अगर ये 53A की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट पर्सन, दैट एसएससी वुड बी कंसिडर्ड एज योर डीम्ड ऑनर. वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन सिंपली आपकी 53A की ये है कि दैट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट. पावर ऑफ अटॉर्नी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको वैलिडेट करने के लिए हमारी कंडीशंस क्या है कि पहली चीज एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दैट देयर शुड बी एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड सिमिलरली द सेकंड पार्टी मस्ट एक्सेप्ट फॉर द सेम. सो व्हेन देयर इज एन ऑफर plus an acceptance for that offer, then it turns out to be an agreement. So that agreement must be there between the purchaser and the seller. Second point to hold it as a valid one is that there should be a consideration in return. कि जो agreement हुए दो parties के बीच में उसका in return consideration होना चाहिए, right? And the third and the very important point, that means the person who has purchased the property, he must take the possession of the property. यानी कि जो प्रॉपर्टी अब वो उसके पोजेशन में होनी चाहिए. दैट इज इट इज कॉल्ड कि आपको पावर मिली है, दैट पावर ऑफ योर अटॉर्नी. सो व्हेन यू आर सैटिस्फाइंग ऑल दीज 3 कंडीशंस एज गिवन अंडर योर सेक्शन 53A of your transfer of property act, then we will be considering that person who has acquired the property under your this power of attorney transaction, right? And after satisfying all these conditions, that person will be considered as a deemed owner, नो मैटर वो रजिस्टर्ड ऑनर है या रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है, बट हम उसे डीम्ड ऑनर कंसिडर करेंगे. इसी में हमारा लास्ट केस है एनी पर्सन हु हैज टेकन अ प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर मोर देन 12 years. सो कोई भी पर्सन जिसने प्रॉपर्टी को 12 साल से ज्यादा का उसके पास लीज के राइट्स हैं, सो उस केस में हम जो है उस पर्सन whosoever has taken the property on to lease for more than 12 years, he will be taken up as your deemed owner of the property. So हमने section जो है basis of charge के बारे में बात करा and then we talked about your deemed owner with respect to the same. Now जब हम अपनी house property की बात कर रहे हैं, we'll be talking about one important point, that is your composite rent. कंपोजिट जैसे नाम बता रहा है कि जहां आप एक कंबाइंड एक एग्रीगेटेड अमाउंट दे रहे हैं,
ना कि सिर्फ फ्लोर की जो रेंट है उसके लिए, बट दी अदर फैसिलिटीज जो आपको उस बिल्डिंग, उस अपार्टमेंट या उस रूम के साथ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ फर्नीचर मिल रहा है उस बिल्डिंग में या उस फ्लोर में, लिफ्ट की फैसिलिटीज मिल रही हैं, any sort of your AC facilities, gas, water, right, or any you could say pipeline facilities, so उसका जो lump sum आपने रेंट का पैसा दिया, that is your composite rent, right? So suppose करो यहाँ पर मिस्टर ए है कोई, he is a tenant and उन्होंने composite services ली हैं। composite services यानी कि जहाँ पर वो रूम का पैसा दे रहे हैं 10,000 rupees as the rent, plus lift and maintenance के लिए he is giving 5,000 as the rent। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जितना उन्होंने रेंट दिया है बिल्डिंग का, राइट, उतना पैसा आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और उसके रिलेटेड जितनी आपकी अलाइड सर्विसेज है, चाहे वो लिफ्ट की सर्विसेज हो, आपकी एसी रिलेटेड, गैस या किसी पाइपलाइन या वाटर सर्विसेज हो, दैट 5,000 अमाउंट ऑफ योर रेंट विच इज देयर इनटू द मेन कॉम्पोजिट रेंट, राइट, वो आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में। और जो मेन अमाउंट है, मेन घर का अमाउंट है, फ्लोर का, बिल्डिंग का 10,000 रुपए, वो आपका अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। ठीक है, सो ये हुआ जब हमने कंपोजिट रेंट की बात करी कि वो इंक्लूड कर रहा है चार्जेस किसी सर्विसेज के लिए। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि कंपोजिट रेंट में जो है वो इंक्लूड कर रहा है कुछ सर्विसेज की जगह पे। अब हम बात करें एसेट्स की, और वो एसेट्स ऐसे हैं कि उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, कॉलेज का ऑडिटोरियम है, उसमें ऑडिटोरियम में यू नो दैट ऑडिटोरियम इज व्हाट, इट इज अ हॉल सॉर्ट ऑफ अ थिंग जहां पर आपको बिल्डिंग का एक रेंट देना है, राइट, या सिनेमा हॉल में भी आपको उस स्पेस का आपको रेंट प्रोवाइड करना है। बट उस रेंट के अंदर जो है उसके साथ आपको एक हॉल के साथ, चाहे हम ऑडिटोरियम की बात करें या सिनेमा हॉल की बात करें, उसमें आपको चेयर्स फिक्स्ड मिलती हैं साथ में, है ना, दैट देयर इज अ फिक्सचर जो सिस्टम है, जो इक्विपमेंट्स है आपके एसेट्स हैं इंक्लूडेड होते हैं। नाउ वी कैन नॉट से ना कि हम चेयर्स को अलग कर देते हैं एंड जो स्पेस है उसको अलग कर सकते हैं, राइट। जब हम इस तरीके से एसेट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जो हम लमसम अमाउंट दे रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ, जब हम सिनेमा हॉल की बात करें या ऑडिटोरियम की बात करें, हम अलग सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं कि भाई ये हमारा चेयर का किराया है और ये हमारा जो है स्पेस का किराया होगा, राइट। जब हम एक लमसम पैसा देते हैं तो चाहे वो जितना भी लमसम पैसा है आपका हॉल का 18,000, 20,000, 30,000, वॉट एवर इज द अमाउंट, वो आपका इंटायरली टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेज में, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर आप सिर्फ जो है एक रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ उस ऑडिटोरियम का ही नहीं बल्कि उससे अटैच्ड मशीनरी या फिर फर्नीचर का भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। थर्ड केस इसी का लेते हैं हम। अभी हमने बात करी कंपोजिट रेंट में आपका रेंट या तो सर्विसेज के लिए इंक्लूडेड है या फिर एसेट्स के लिए, और एसेट्स कैसे हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस सपोज कि हम कंपोजिट रेंट दे रहे हैं, एसेट्स का भी रेंट दे रहे हैं और दोनों जो है सेपरेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज ग्राउंड की बात कर लीजिए, कॉलेज ग्राउंड में लेट अस सपोज इट इज एन ओपन स्पेस, राइट, आप उस केस में ओपन स्पेस का या कॉलेज का जो वो ग्राउंड है उसके चार्जेस दे रहे हैं, रेंटल चार्जेस, प्लस उसमें सपोज करो आप कहीं से चेयर्स लेकर आए हैं रेंट पर फॉर एन इवेंट टू बी हेल्ड और फॉर अ कंसर्ट टू बी हेल्ड, राइट। सो उस केस में आपका जितना चेयर का चार्जेस है, यानी कि जितना आपका फर्नीचर या एसेट का चार्जेस है, वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी या अदर सोर्सेस, राइट। और जितना पैसा आपका जो उस कॉलेज के जो ग्राउंड का जो आप रेंटल अमाउंट दे रहे हैं, दैट विल बी योर टैक्सेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो इन शॉर्ट वी कैन से जितना भी आपका अमाउंट रेंट का कॉरेस्पॉन्ड करता है प्रॉपर्टी से, फ्लोर से, बिल्डिंग से, राइट, ऑडिटोरियम से, कॉलेज ग्राउंड से, दैट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, चाहे हम कंपोजिट रेंट की ही क्यों ना बात करें। और जहां कोई सर्विसेज एंगेज होती हैं तो सर्विसेज हमारी जो है पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एसेट एंगेज होता है अगेन पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बट अगर एसेट आपका सेपरेबल नहीं है तो एंटायर दैट लमसम अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड योर पीजीबीपी और योर अदर सोर्सेज। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज that are not chargeable to taxes under your head house property। तो जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ स्पेसिफिक हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी टैक्सेबल नहीं होती हैं जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फॉर लेट अस से द फर्स्ट वेरी केस इज योर इनकम फ्रॉम फार्म हाउसेस। सो जितना भी आपका
फार्म हाउसेस से इनकम आएगी वो आपकी अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकम एंटायरली एग्जाम्प्ट होगी जितना आपने फार्म हाउस से अर्न करा, हम ये बात कर रहे हैं कि जितना आपने फार्म हाउस से इनकम अर्न करा वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है, चेकिंग अपॉन द कंडीशंस, राइट, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो सकता है, अगेन चेकिंग अपॉन द कंडीशंस फॉर द सेम। सिमिलरली there is any palaces, you have heard about the term palaces, so ex rulers हैं, उनके कोई palaces हैं, उनसे आपकी कोई income आ रही है, any such income that you are generating from such ex rulers palaces, that income is again not taxable under the head house property, again exempted नहीं है but वो house property में chargeable या taxable नहीं है। Similarly आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी ट्रेड यूनियन से, आपकी कोई वहां से कोई आपकी इनकम आ रही है, एनी सॉर्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी इनकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर इनकम, वी आर ओनली हियर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी इनकम। सो अगेन दैट विल नॉट बी चार्जेबल अंडर द हेड योर हाउस प्रॉपर्टी। फर्दर ऑन लेट्स से कि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है बट यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। अब जब हम चैरिटेबल पर्पसेस की बात कर रहे हैं तो ना ही वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा ना ही बाकी हेड्स में, क्योंकि द इनकम दैट यू हाउस प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड, विच इज हेल्ड फॉर योर चैरिटेबल पर्पसेस, इट इज एग्जम्प्टेड। सो दैट इज व्हाई this house property is not taxable when we are talking about with respect to your charitable purposes. It is not chargeable to taxes under your head house property, rather it is entirely exempted, right? Similarly जब हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी को, अगर हम सपोज करो अभी जितने केसेस हमने बात करा कि हाउस प्रॉपर्टी जो है असेसी, ही शुड नॉट यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन, रेदर द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन यूज फॉर द रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए आगे आप प्रिंट आउट दे दो, बट असेसी खुद अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसको यूज नहीं कर सकता। तो दैट इज द केस, अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, again that will also not be chargeable under the head house property, it will be taxable under your your PGBP, under your other sources, but वो house property में तो taxable नहीं होगा, ठीक है। another point, प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं जब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, एक होती है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकेंड इज योर लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि जिस पर असेसी खुद रह रहा है, ठीक है, और लेट आउट मतलब जिस प्रॉपर्टी को आपने आगे रेंट पर दी है, लेट आउट करा है जैसे, ठीक है। सो दो कैटेगराइजेशंस हो गई हमारे पास, एक हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक हो गया हमारे पास लेट आउट। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, 2020-21 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने कहा कि जो असेसी है वो किसी भी, लेटर सपोज उसके पास 4 या 5 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो वो किसी भी 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड एज्यूम कर सकता है, कह सकता है कि ये मेरी खुद की, यानी कि मैंने खुद ऑक्यूपाई करी है वो सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सो उसका बेनिफिट क्या है कि इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में उनकी एनुअल वैल्यू जो है वो बिल्कुल निल हो जाएगी। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यूज क्या होती हैं, बट 2021 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने कहा ईयर था वो आपका बेनिफिट एक आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए था कि उसकी जो आप वैल्यू है एज्यूम कर सकते हैं निल। वैल्यू एज्यूम निल करने का मतलब हुआ कि मेरे टैक्सेस कम हो गए कॉरेस्पॉन्डिंगली, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस बेनिफिट। गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप जो है ये बेनिफिट 2 हाउस प्रॉपर्टी, बट वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको जो है आपकी एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। और सेकंड जो लेट आउट है, दैट मीन्स उसमें हम प्रॉपर्ली कंप्यूट करते हैं कि आपका जीएवी क्या होगा, कितने टैक्सेस हैं, विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट द सेम कि कैसे हमारी कंपटीशन होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में या लेट आउट के केस में सीरीज को। सो दैट्स इट फॉर द सेम एंड थैंक यू।